یہ تھوڑا صحیح ہو گیا کہ آپ سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم بھی دے رہے ہیں، لیکن سنا ہے کہ پہلے آپ اس چیز کے بڑے خلاف ہوتے تھے کہ یہ کیا سارا ایسا دن نہیں ہو، اصل میں یہ ہے کہ مخالف نہیں رہا ہوں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کا نا کچھ ٹائمنگ ضرور ہونی چاہیے. یہ دلچسپ، میرے والد صاحب ایک امام مسجد تھے، انتہائی غربت کا زمانہ میں نے دیکھا ہے. فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اساتذہ کرام اس وقت رات کو بھی پڑھانے کے لیے تیار رہتے تھے. جب بھی کوئی امتحان ہونا، ٹرمینل ایگزام ہوتا تھا تو وہ جناب ہمیں رکھتے تھے کہ اسکول میں رکھ لینا، وہاں جناب سارے سلسلے کرنا. تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے ان کو دینے کے لیے کہ خرچ کے لیے بھی پیسے دے دوں. کہ میں نا ایک سائیکل پہ تھا، اس لوگوں نے نا پارٹی والے دن ایک سائیکل لا کے کھڑی کر دی. میں نے اس کو 7-8 ڈنڈے کوئی مار دیے، تو وہ میرا خیال ہے پھر اپنی والدہ کو لے کے آ گیا تھا. آپ کا پسندیدہ اسٹوڈنٹ کون سا رہا ہے؟ پسندیدہ سارے ہی ہیں ماشاءاللہ، کسی سے مجھے نفرت نہیں ہوئی، بلکہ جنہیں آپ سمجھتے ہو یہ بڑا لائق ہے، یہ کچھ آگے جا کے بن سکتا ہے، کہہ سکتا ہوں وہ تو بن بھی گیا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی جس اسٹوڈنٹ نے آپ کو زیادہ تنگ کیا، پریشان کیا؟ یاد آ رہا ہے مجھے، ایک دفعہ ایک طالب علم تھا ادھر کہیں 32 33 یا 34 سے تعلق تھا، اس کو نا شکایتیں آتی تھی بہت، بچیوں نے مجھے شکایتیں کی. کیا سر آج کل تو مار نہیں پیار والا سسٹم شروع ہو گیا ہے. جب ہم پڑھتے تھے، جب آپ پڑھتے تھے، تب تک استادہ کا بڑا خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم نے سبق نہ یاد کیا تو ہمیں مار پڑے گی. تو یہ گا کہ آپ کے دور میں کوئی آپ کا جو فیوریٹ بیچ رہا ہو ان سالوں میں، وہ کس سال کا تھا؟ ایک تو جو پہلا بیچ تھا نا، وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا، جس میں وہ آپ کی جو ابھی ٹیچر کی فیلڈ ہے، اس کا آپ کی خواہش تھی، جو آپ کا خواب تھا، یا کوئی اور بننا چاہتے؟ بہت ہی اچھا سوال تھا یہ، میں بائی چانس بالکل بھی نہیں آیا. اچھا سر، اس کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ میں زیادہ تر وقت جو ہے نا فارغ رہتا ہوں، لیکن اچھا جو میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فیصل چودھری، اور آج ہم موجود ہیں علاقہ پیر مال کے گاؤں چک نمبر 699/31 گورنمنٹ ہائی اسکول میں. ہم ملاقات کرواتے ہیں، ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں جو اس علاقے میں کسی تعارف کی محتاج نہیں. ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی، جناب ملک علم الدین عوان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جیت رہیے بیٹا، آپ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. جو تمام دوست یہ کیسے کہا فیصل مقبول نے، میں 1993 سے یہاں پڑھا رہا ہوں، اور میرا جو تعلق ہے وہ عوان فیملی سے ہے، اور یہاں پڑھاتے ہوئے بہت اچھے تجربات ہوئے، بہت اچھا وقت گزرا ہے. اور میں عوان فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرا ایک موٹو رہا ہے کہ میں اپنے طلباء تک بڑے شوق سے، شفقت کے ساتھ ان کے قریب رہوں، تاکہ وہ اپنی تمام جو ہیں چیزیں، ضرورتیں جو ہیں وہ مجھ سے بیان کر سکیں، کھل کر بیان سکیں، اور وہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کر سکیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ میرا نام ملک علم الدین ہے، اور میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا تعلق چک نمبر 676/17 گابے سے ہے، جسے پٹھانا والا چک بھی کہتے ہیں. تو 1993 سے یہاں پڑھا رہا ہوں بیٹا. آپ فیصل 1993 سے میں جاؤں. سر پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ، اللہ کو خوش رکھے، بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ سر. آپ نے ماشاءاللہ پرسنالٹی شروع سے جب دیکھ رہے ہیں ایسی ہے، ہم خود آپ کے بڑے فین ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے سر؟ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جڑا رہے نا بندے کا، اس سے انسان مانگتا رہے، اور ایز منصبی جو ہیں ان کو پورا کرتا رہے، تو خود بخود دوسروں کے حقوق پورے ہو جاتے ہیں. اور جب ایسا آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی اگر مد نظر رہے گی تو انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی بھی ٹھیک رہے گی، آپ کے ساتھ لوگوں کا تعلق بھی ٹھیک رہے گا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا وقار. سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد ہائی اسکول اور پھر کالج کی تعلیم؟ جی، بڑا ایک دلچسپ یہ آپ نے سوال کیا ہے. میں اصل میں گورنمنٹ ہائی اسکول 328 گابے جو ہے وہاں پڑھتا رہا ہوں. وہ بڑا میرا فیوریٹ ادارہ ہے. میں نے 1982 میں وہاں سے میٹرک کیا تھا. اس کے بعد پھر 84 میں نے ایف اے کر لیا. ایف اے کرنے کے بعد میونسپل ڈگری کالج. آپ اندازہ لگائیں فیصل کہ میں اس وقت سائیکل چلا کے پیر مل جایا کرتا تھا، اور پیر مل سے پھر کوئی بس مل جاتی تھی تو رجانا جاتے تھے، رجانا سے پھر نکل کے جناب ٹوبا ٹیکسنگ جایا کرتے تھے. اتنا لمبا ایک وقت لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے بی اے میں اپنے کالج کو، میونسپل ڈگری کالج ٹوبا ٹیکسنگ کو ٹاپ کیا تھا. اور میری سند جب وہ سر فہرست اوپر رکھی ہوئی تھی نا ٹاپ پہ، تو مجھے سارے شاگرد، میرے جو دوست تھے، ساتھی، کلاس فیلوز، انہوں نے آگے مبارکبادیں بھی دی، کہا کہ یار واقعی آپ اس بات کے مستحق ہو کہ اس طرح سے آپ ٹاپ پہ آئے. اور مجھے یہ کرنے کے بعد 2 سال جو نئی روشنی اسکول میں پڑھایا، آئی اچیوڈ مائی ٹارگیٹ دیئر آلسو. بہت عزت بنی وہاں بھی، لڑکے پڑھے، انہوں نے ایف اے کیا، کچھ لڑکے گریجویشن میں بھی گئے، سارا کچھ ہوا. تو اس کے بعد پھر میں نے ایم اے جو ہے نا وہ پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا، اور اسی نئی روشنی کی وجہ سے جو بی ایڈ ہے وہ علامہ اقبال یونیورسٹی، کیونکہ وہاں تجربے کی بنیاد پہ داخلہ ہوتا تھا.
सर माशाल्लाह आपका शुमार जो है वो लाइक स्टूडेंट्स में होता था, इस वजह से अल्लाह पाक ने आपको सिला भी दिया है। और फिर मेरे वाला साहब एक इमाम मस्जिद थे, इंतहाई गुर्बत का ज़माना मैंने देखा है, फ़ीस के लिए पैसे नहीं होते थे, असातिज़ा कराम उस वक्त रात को भी पढ़ाने के लिए तैयार रहते थे। जब भी कोई इम्तिहान होना, टर्मिनल एग्ज़ाम होता था तो वो जनाब हमें रखते थे स्कूल में रख लेना, वहाँ जनाब सारे सिलसिले करना। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे उनको देने के लिए कि ख़र्च के लिए भी पैसे दे दूँ। तो ये कहना कि मैं बहुत लायक फ़तीन था, ये इससे मुझे इत्तेफाक नहीं है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अंदर से मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन ये पता नहीं क्या अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी है, उसके एक एहसान है मुझ पर कि लोगों के दिलों में ये चीज़ें डाल दी हैं उसने कि मुझे एक अच्छा और लायक भी समझा जाता है। अब उसके बाद एक और नया शोबा भी फैसल मेरे सामने आ गया, पढ़ाने के साथ साथ वो भी पढ़ाने का ही है, इमामत खताबत का। मेरे पास ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी है, निकाह रजिस्ट्रार भी हूँ। इतनी सारी पोस्टें मुझे वालिद साहब देकर गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है, सब लोग बहुत एहतराम से पेश आते हैं। सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो कौन सा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इस्लामियत रहा है हमेशा से, क्योंकि मेरा ख़ानदान मजहबी है, तो मैं इस्लामियत का सब्जेक्ट बहुत शौक से पढ़ाता रहा हूँ। इसी वजह से शायद अंग्रेज़ी के पीरियड में ऐसी कई चीज़ें ले आता हूँ जिससे बच्चों की रूहानी तौर पर भी और क्या कहना चाहिए कि उखरवी लिहाज से बेहतरी हो रही हो, तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ उनसे। सर आपकी जो अभी टीचर की फील्ड है, इसका आपकी ख्वाहिश थी, क्या आपका ख्वाब था, क्या कोई और बनना चाहते? बहुत ही अच्छा सवाल था ये, मैं बाई चांस बिल्कुल भी नहीं आया, चूँकि मेरा एक शौक़ था। मुझे लोग कहते हैं, आर्मी में मैंने अप्लाई किया था, उसमें जो खतीब होते हैं तो मैंने जाना भी था, लेकिन मैं फिर समझ रहा था कि चूँकि खतीब भी एक मतलब टीचिंग की पोस्ट ही है, मैंने वैसे नहीं अप्लाई किया उसमें, इसके लिए किया था, लेकिन फिर मुझे मौका नहीं मिला वहाँ जाने का, नहीं तो शायद क्या पता सिलेक्शन हो जाती। टीचिंग मेरा एक फेवरेट सिलसिला रहा है शुरू से ही, मुझे शौक़ था पढ़ाने का। बाई चांस बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, कसदन नहीं आया हूँ। कमर्शियल ना रहें हम, बल्कि तलबा को समझाने की फ़िक्र करें, उनमें कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। सर इस इलाके में हम देखते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट, मेरा नहीं ख्याल कोई होगा जिसने आपसे तालीम नहीं हासिल करी होगी क्योंकि इस इलाके में कोई और गवर्नमेंट हाई स्कूल नहीं है, तो बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए। वैसे ये बात आपकी ठीक इसलिए कि ये इदारा काफ़ी दूर दराज है, 35, 36, 37, 38, 39, 46 तक के लड़के। और जब ये मेरा ख्याल है 28 का स्कूल नहीं था, मिडल नहीं था, तो छठी से ही हमारे पास वहाँ से भी तलबा आ जाते थे। इधर 53, 54, 55, 56, 57 और कई दफ़ा रौती के कई लड़के जो हैं वो हमारे पास आते रहे। तो इसी दिन हेडमास्टर साहब भी कह रहे थे, आजम से हमारे हेडमास्टर हैं, वो कह रहे थे कि यार आदमी जो है ना, जहाँ ज़्यादा रहता है ना, वहाँ उसकी गिरफ्त ज़रा मजबूत हो जाती है। सर ये थोड़ा सही हो गया कि आप सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन सुना है कि पहले आप इस चीज़ के बड़े खिलाफ होते थे कि ये क्या सारा दिन यंग जनरेशन जो मोबाइल के पीछे पड़ी नहीं हो। असल में ये है कि मुखालिफ नहीं रहा हूँ, ये ज़रूर कह सकते हैं आप कि इसका ना कुछ टाइमिंग ज़रूर होनी चाहिए, ये ना हो कि हर वक्त बंदा इसी से दिल बहलाए। अब भी मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। हाजी साहब को मैंने देखा है, ये हमेशा जब भी कहीं फारग बैठे हूँ बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे होते हैं। मैं सुबह फर्स्ट टाइम या शाम को जब फारग होता हूँ थोड़ा बहुत ज़रूर देखता हूँ, उसमें फिर अपने आने वाले बच्चे जो हैं तलबा, उनके कमेंट्स पे ज़रूर कमेंट्स देता हूँ, इसलिए कि यार उन्हें शौक़ से ये लिखा होगा। ख़ास तौर महसूस होता है, जैसे अभी मैंने फेसबुक बनाई ना, तो मैंने दोबारा बनानी पड़ी, पहले वाला का मुझे वो भूल गया था, उसका पासवर्ड भूल गया था, तो उसमें दोबारा से मेरा 2,500-3 हज़ार के करीब फिर जो है ना वो शागिर्दों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हैं। पहले 5,000 से ऊपर चली गई थी, उसके बाद आपको पता है वो फिर करते ही नहीं। किस साल से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? मैं 1993 में आया था, 30 जनवरी 1993 में आया था, और वो दिन और आज का दिन ऐसे ही लगता है जैसे पहले दिन ही आ रहा हूँ, यानी मेरा दिल नहीं भरा। और यहाँ ख़ास तौर पे जो मैं ये कहता चलूँ, बहुत अच्छा होगा कि गुलाम दस्तगीर साहब हुआ करते थे, साय खान साहब, गुलाम हुसैन अंजुम आपके गाँव से थे, आजकल शायद फैसलाबाद में शिफ्ट हो गए, वो थे, ये वो अब्दुल हमीद खालिद साहब, ये हमारा एक ऐसा सेट था जिसकी ना फैसल आज बड़ी कमी महसूस होती है। डाल दूँ, छठी जमात में जब मैं पढ़ा करता था ना इंग्लिश, फैसल और यूनुस साहब को शायद ना पढ़ाई, लेकिन अक्सर मैंने पढ़ाई भी है जब मैं 8वीं था। इसके बावजूद भी कि मैं 9वीं 10वीं को अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, मुझे छठी की अंग्रेज़ी भी दे देते, वो फिर आगे हर साल चलती रहती थी, तो मैं ABC से शुरू किया। सर आप बताइएगा कि आपके दौर में कोई आपका जो फेवरेट बैच रहा हो इन सालों में, वो किस साल का था? एक तो जो पहला बैच था ना, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा, जिसमें वो जाहिद गुज्जर लड़का था। मुझे याद पड़ रहा है कि मैं ना एक साइकिल पे आता, वो साइकिल ज़रा टूटी हुई थी, उन लड़कों ने पता कैसे ख्याल किया, जो आपस में उन्होंने कहीं मशवरा किया, सब लोगों ने ना पार्टी वाले दिन एक साइकिल ला के खड़ी कर दी। मुझे पता चला ये साइकिल क्यों यहाँ खड़ी है, तो मुझे वो मॉनिटर था जाहिद, वो कह रहा सर जी आपके लिए हम सब लोगों ने इकट्ठी किए हैं पैसे और साइकिल लेकर। मैंने मुझे पूछा क्यों नहीं, बहुत बुरी बात की आपने, लोगों ने बातें बनानी है बाद में कि उन्होंने क्या दिया होगा या कुछ कर दिया होगा, लेकिन बच्चों ने बहुत सख्ती से उस वक्त होते थे हेडमास्टर महमूद हसन साहब, बहुत ही सख्त किस्म के हेडमास्टर थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वफात पा गए हैं। तो उन्होंने कहा इल्मदीन परेशान क्यों हो रहा है यार, बच्चों ने मोहब्बत का इजहार किया है, मैं बैठा हूँ, कोई बात करेगा मैं देख लूँगा उसको। ये वो वाला वो बैच था। उसके बाद शुक्रिया सर। सर आप बताएं कि आपका पसंदीदा स्टूडेंट कौन सा रहा है?
पसंदीदा सारे ही हैं माशाल्लाह, किसी से मुझे नफरत नहीं हुई, बल्कि जिन्हें आप समझते हो ये बड़ा लायक है, ये कुछ आगे जाके बन सकता है, कह सकता हूँ वो तो बन भी गया, डॉक्टर बन गया वो लड़का। काशिफ रियाज था वो 28 चक्कर लड़का। उसकी मैं आपको बात बताऊँ कि एक दिन मुझे छुट्टी लेने आ गया, कभी उसने छुट्टी नहीं की थी पूरे सेशन में, कभी उसने छुट्टी, छठी से लेकर 10वीं तक मैंने उनको अंग्रेज़ी पढ़ाई, शायद 8वीं तक पढ़ाई नहीं आ रहा। वो लड़का था बहुत ही मुअद्दब, छुट्टी ली उसने, मैंने देखा कि 7वें पीरियड में फिर वापस आ गया। मैं यार काशिफ तुम फिर आ गए हो। सर जी वो जो अबू ने बुलाया था मुझे काम का, वो काम मुकम्मल हो गया, मैं नहा धो के फिर अदारे में आ गया, इसलिए कि मैंने क्यों वक्त ज़ाया करना है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे तालिब इल्म वाकई ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं जिनको अपने वक्त का एहसास होता है कि हमने वक्त ज़ाया नहीं करना। और तालिब इल्म के पास एक वक्त ही तो होता है, अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो यकीनन उसका वक्त ज़ाया नहीं होता, बल्कि उसके लिए काम आ जाता है। और सर इसके साथ साथ कोई जो जिस स्टूडेंट ने आपको ज़्यादा तंग किया और परेशान किया? याद आ रहा है मुझे, एक दफ़ा एक तालिब इल्म था इधर कहीं 32, 33 या 34 से ताल्लुक़ था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। उसको ना शिकायतें आती थी, बहुत बच्चियों ने मुझे शिकायतें की कि आपका ये शागिर्द हमें जो है ना तंग करता है। तो मैंने उसको क्लास में एक दफ़ा समझाया, तो मैं समझा क्लास में शायद बेइज्जती महसूस करे, दोबारा फिर शिकायतें आई तो मैं अलग से उसको अलग ले बिठा के उसको समझाया, बेटा इस तरह ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें फिर बहुत सख्त सज़ा होगी मुझसे, फिर तुम परेशान हो गए, अच्छा नहीं है कि ये मौका है, ये चीज़ें छोड़ दो तुम। लेकिन वो आपके ही गांव से कुछ लोग जो है फिर वो असम्बली पे आ गए कुछ दिनों के बाद, और मैं ज़रा कोई काम में मसरूफ़ था, हेडमास्टर साहब ने कुछ कहा हुआ था शायद मुझे, मैं असम्बली पे गया हूँ तो वहाँ ना वो मैंने कहा क्या मसला है, कहते ये फ़लाँ लड़का जो, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इसको तो मैं 2 दफ़ा पहले समझा चुका, पब्लिक आ गई है। तो मैंने उसको 7-8 डंडे कोई मार दिए, तो वो मेरा ख्याल है फिर अपनी वालदा को लेके आ गया था। यहाँ आके जनाब उसने पंचायत लगाए रखी, फिर कहा मैं मेडिकल जो है वो लीगल बनवा लूँगा वगैरह वगैरह। खैर लोगों ने फिर समझाया कि यार जब बात सुनी ना सब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा अपना कसूर है, अगर उन्होंने समझाया था अच्छी तरह से तो फिर 7-8 डंडे तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको ज़्यादा भी मार देते तो उसमें कोई, तो ये मुझे याद रहेगा, बहरहाल ये भूला नहीं है वैसे। अच्छा सर इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं ज़्यादातर वक्त जो है ना फारिग रहता हूँ, लेकिन अच्छा जो मेरा मशगला है वो मेरा मशगला है मुताला करना, पढ़ना। मैं स्टडी करता हूँ, उसमें ख़ास तौर पे तफसीर के हवाले से मैं कंज़ और ईमान को पढ़ रहा होता हूँ। उर्दू डाइजेस्ट मेरा फेवरेट रिसाला है जिसको मैं पढ़ता हूँ, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सर आप क्या समझते हैं कि जो आजकल सिलेबस है वो पिछले दौर का जो सिलेबस था उससे काफ़ी टफ़ है, ये बच्चों पर बड़ा बर्डन नहीं है? सिलेबस तो ये ठीक है उर्दू में जैसे चल रहा है, लेकिन अभी जो हुआ है ना, अगर ऐसा हो गया हुआ है तो बहुत ही बुरा हुआ होगा कि अंग्रेज़ी में कोर्स जो है वो लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क का एटमॉस्फेयर, बतौर एक एजुकेशनिस्ट मैं हूँ तो नहीं, लेकिन बहरहाल जहाँ तक मैंने पढ़ाया है या समझा है, जब तक आप मदर लैंग्वेज में या अपनी कौमी ज़बान में बच्चों को नहीं समझाएंगे उस वक्त तक उनको समझ नहीं आती है। जो ही वो बड़े होंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वो पढ़ लेंगे। सिलेबस ठीक ही है तकरीबन किसी हद तक, लेकिन ज़्यादा है उसको ज़रा बहरहाल पता चला कि आपके बच्चे जो है वो गवर्नमेंट अदारे में भी तालीम हासिल कर रहे हैं। मैंने ये प्राइवेट इदारों का मुखालिफ तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपने बच्चों के लिए प्राइवेट इदारों को मैंने इंतखाब नहीं किया। सर आप ऐसा नहीं समझते कि जो तालीम के साथ साथ तरबियत भी बच्चों की बहुत ज़रूरी है? और सर इसके अलावा देखें कि हमें थ्योरी तो बहुत सारी पढ़ा दी जाती है, लेकिन एज अ प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाया जाता। हम समझते हैं कि ठीक है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ ना एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को तरबियत और अखलाक इस तरह की, ताकि हमारा मुल्क भी महज़ब मुल्कों में शामिल हो, ताकि पता चले कि पाकिस्तान की अवाम बहुत अच्छी है, उनका अखलाक बहुत अच्छा है, उनका तरीक़ाकार बहुत अच्छा है, वो डिसिप्लिन है। इस बारे में आप क्या कहें? मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल। तरबियत के हवाले से जब मैं हेड था तो मैंने बाहर एक बोर्ड लगवाया था कि यहाँ हम बच्चे की शख्सियत साजी भी करते हैं। तो मुझे अक्सर लोगों ने पूछा ये शख्सियत साजी यानी पर्सनैलिटी मेकिंग, मैं कहा ये तो बहुत अहम है। जब बच्चे को यही नहीं पता होगा तो फिर वो मीनार पाकिस्तान वाले वाक़यात शायद पेश आ रहे होंगे। हमें चाहिए कि हम बच्चों की तरबियत करें, उनको ज़रूरी नहीं है कि एक पीरियड ही हो, हर पीरियड में जब बंदा पढ़ा रहा होता है तो उसमें ऐसे कई वाक़यात आ रहे होते हैं जिसमें पूरी थोड़ी तफसील बता दे बंदा उनको, और बताए उनको एटिकेट्स। सर आप क्या समझते हैं कि इस माशरे में अभी तक जो है वो क्या चीज़ है जो बिगाड़ पैदा कर सकती है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हमारे अपने स्टूडेंट्स? जी, मैं समझता हूँ तालीम की बहुत कमी है अभी भी। तालीम बराए तालीम, बल्कि तालीम भी हो और उसके साथ तरबियत, जैसे पहला आपका सवाल था, तालीम की कमी की वजह से शायद ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। और तालीम की कमी से मुराद मेरी ये नहीं कि पढ़े लिखे लोग भी बाज़ एक गड़बड़ कर रहे होते हैं, मतलब ये कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी उन लोगों की हो चुकी हो, और ये वाली तालीम अगर हम माशरे में पैदा कर दें कि लोगों की तरबियत भी कर दें और वो डिग्रियाँ भी लें, साथ साथ तरबियत याफ्ता भी हों, तो हमारा मुल्क बहुत अखलाकी लिहाज से आगे निकल सकता है। तालीम ही किसी माशरे को बिगाड़ती भी है और बनाती भी है। इमाम का शोबा, जैसे हमारे स्कॉलर्स हैं, उलमाए दीन हैं, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, प्राइमरी के, मिडिल के, हाई के, जो भी हैं, ये हैं वो लोग जो तालीम देकर तरबियत करके कौम को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। कि हम ज़रा अपना काम जो है वो तनदेही से करें, कोशिश से करें, मेहनत।
سر ایز اے ٹیچر اپنے آپ کو آپ نے کیسے پایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے ٹیچر ہو کر، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹیچر ہوں اور ٹیچر ہی رہوں، اور آپ یہ دعا کریں کہ چیٹر نہ بنیں ہم، بلکہ ٹیچر ہی رہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور شعبہ نہیں ہے، یہ تو ایک پیغمبروں والا شعبہ ہے جی، اور پیغمبر اس بات کی تنخواہ بھی نہیں لیا کرتے تھے، وہ تو بغیر تنخواہ کے ہی مولوی کا پیشہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو یقیناً ہمیں اس پیشے کی لاج رکھنی چاہیے اور اپنے کام کو بڑی تندہی سے کرنا چاہیے۔ اگر سر آپ کو موقع ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور فیلڈ میں جانے کا تو کس فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں آپ؟ پھر میرا خیال ہے کہ اگر میں کہیں اور جانا بھی جاتا تو پھر شاید میڈیکل میں جاتا، اس لیے کہ پھر اس میں بھی لوگوں کے کام آنے کی جو ہے نا بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی اور لحاظ سے خدمت کر سکتے ہیں، جسمانی لحاظ سے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سر آج کل تو مار نہیں پیار والا سسٹم شروع ہو گیا ہے، جب ہم پڑھتے تھے جب آپ پڑھتے تھے تب تک استادہ کا بڑا خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم نے سبق نہ یاد کیا تو ہمیں مار پڑے گی، تو وہ والا زمانہ ویسے اچھا نہیں تھا سر؟ ویسے پیار ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت نا اثر انداز ہوتی ہے، شوق سے پہلے قریب سے سمجھایا جائے، اس کے قریب ہوئے شفقت کی جائے، اگر تھوڑا بہت کہیں ڈانٹنا پڑتا ہے یا سختی کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ اس عالم میں کی جائے جب وہ انتہائی ضروری ہو جائے، ادروائز تشدد سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سر آپ نے اسٹوڈنٹس کو کوئی میسج دینا چاہیں گے جنہیں آپ بہت زیادہ کرنے ہیں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اپنا کام بہت محنت سے کریں، ابھی یہ وقت ہے کہ تعلیم سے خود اپنے آپ کو بہرہ مند کر لیں، تعلیم سے بڑھ کر کوئی اور زیور نہیں ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، یہ وہ زیور ہے جو ہمیشہ بندے کے پاس رہتا ہے اور خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، لہٰذا طالب علم جو ہے اسے اپنے محنت سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سر بہت بہت شکریہ سر آپ۔ جی میں کہوں گا انشاءاللہ جیسے آپ نے میرا انٹرویو کیا ہے اور بھی ایسے لوگوں کا کریں تاکہ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ انشاءاللہ یہ چینل اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھیں بھی کیونکہ ان کو فائدہ ہو۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ٹائم لے کے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔